Hello class 12th students. Today I am going to explain you the second poem of your textbook Flamingo, and the name of the poem is An Elementary Classroom in a Slum. An elementary classroom in a slum. Elementary means होता है प्राइमरी स्कूल, ठीक है, प्राइमरी जहाँ प्राइमरी क्लासेस लगती हैं अप टू 5th स्टैंडर्ड. ओके. And slum is a area below poverty line where people live, where poor people live. एंड हिंदी में इसे हम बोल सकते हैं झुग्गी झोपड़ी वाला जो एरिया होता है उसे हम स्लम एरिया बोलते हैं. ठीक है. So first I will give you a brief introduction of the poem, then I will give you the line to line explanation of the poem. So this poem is written by Stephen Spender. Who is the poet of this poem? Stephen Spender. In this poem he is describing about the social inequalities in our society. He describes the condition of an elementary school, a primary school which is located in a slum area. एक स्लम एरिया में प्राइमरी स्कूल की कहानी यहाँ पर बताई गई है. He wanted everyone to understand that the life of these children can be changed. They can become better citizen of our country. Here the poet is worried about the condition of the children living in this slum area and studying in this elementary school of slum area. Okay. Let's begin with the first paragraph. Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's Ganreld disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. So in this first paragraph, the author is describing about some children who were studying in that slum area elementary school. In this paragraph, 4 children are described. First one is a tall girl who's वेक डाउन द हेड एंड सिटिंग मीन्स अपने सिर को बेंच पर रख कर हेड डाउन कर कर वो बैठी हुई है. शी इज सिटिंग हेड डाउन ऑन द बेंच. एंड सेकेंड इज पेपर सीमिंग बॉय मीन्स अ वेरी थिन माल नरिश्ड बॉय मीन्स जिसको खाना नहीं मिल रहा है, ऐसा एक दुबला पतला बच्चा डिस्क्राइब किया है. और थर्ड है अनलक्की आयर. आयर मीन्स होता है ए वेरी लकी एंड वेरी रिच पर्सन, पर यहाँ पर अनलक्की इसलिए बोला है क्योंकि ना वो रिच है ना वो लकी है. ठीक है. एंड ए स्वीट यंग बॉय. दिस 4 चिल्ड्रन आर डिस्क्राइब्ड हियर. Here the poet describes that in this first stanza the poet is describing about the condition of slum children who were studying in this elementary school. जो इस एलिमेंट्री स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के बारे में इस पैराग्राफ में बताया है. ही इज़ कंपेयरिंग द स्लम चिल्ड्रन विद द अदर चिल्ड्रन. ही सेज दैट द चिल्ड्रन आर अनवांटेड प्लांट्स. यहाँ पर रूटलेस वीड्स का मीनिंग होता है अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे पौधे जो कहीं भी उग जाते हैं वो वाले. सो वो कंपेयर कर रहे हैं इन चिल्ड्रन को, स्लम चिल्ड्रन को अनवांटेड प्लांट्स से. That these children are unwanted plants. Nobody is caring about them and nobody is responsible for them. Their hair is scattered. Hair scattered means क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है the hair torn round the parlor. Parlor means यहाँ पर face है, तो उनके जो हेयर हैं वो स्कैटर्ड है, इधर उधर बिखरे हुए हैं. अराउंड देयर डल फेस. उनके डल फेसेस पर उनके जो हेयर हैं वो बिखरे हुए हैं.
Now he is describing the children one by one. A tall girl was sitting in the class and her head is weighed down. Head bent down है उसका. हेड क्या है उसका? बेंड डाउन है. एक टॉल गर्ल है, उसका हेड बेंड डाउन है. वाई इज शी सिटिंग लाइक दैट? वो ऐसी क्यों बैठी हुई है? मे बी शी इज़ टायर्ड, हो सकता है वो थकी हुई है. और शी इज़ अशेम्ड ऑफ हर पॉवर्टी, या फिर वो गरीबी से परेशान है. नेक्स्ट इज़ अ पेपर सीइंग बॉय. पेपर सीइंग बॉय मीन्स होता है लुकड एज थिन एज अ पेपर. पेपर की तरह थिन दिख रहा है. बिकॉज ही हैज़ नॉट ईटन फूड फ्रॉम मैनी डेज एंड ही इज़ मॉल नरिश्ड. उसको खाने की कमी है उसकी बॉडी में. हिज आइज़ लुक लाइक रैट. उसकी आइज़ को रैट से कंपेयर किया है. क्यों कंपेयर किया है? क्योंकि उसकी छोटी छोटी जो आइज़ है, वेरी स्मॉल, ऑलवेज सर्च फॉर फूड. वो हमेशा खाने के लिए तरसता है, खाने के लिए तलाशता है. अ स्टंटेड बॉय. स्टंटेड बॉय मीन्स होता है अनलक्की आयर. हु इज़ हायर क्या होता है? अ सक्सेस बॉय, जो हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं, रिच रहते हैं. ही रिसीव्ड ए डिसीज़ फ्रॉम हिज फादर. इस बच्चे ने उसके फादर से एक हेरिडिटी डिसीज़ ली है. ही इज़ स्टंटेड ग्रोथ. ही इज़ नॉट फुल्ली ग्रोन. उसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है. स्टंट मीन्स रुकना, रुका हो गया है ग्रोथ. ड्यू टू माल न्यूट्रिशन. किसके कारण? खाने की कमी के कारण. ही हैज़ इनहेरिटेड ट्विस्टेड बोन्स. उसको कौन सी बीमारी है? ट्विस्टेड बोन्स मीन्स उसकी जो बोन्स है वो डेवलप नहीं हुई है, नॉट डेवलप्ड बोन्स है उसकी. ही रिसीव्ड द डिसीज़ नैरेटेड डिसीज़. नैरेटेड डिसीज़ मीन्स होता है, नैरेटेड डिसीज़ मीन्स होता है डेंजरस डिसीज़. उसने ये डेंजरस डिसीज़ अपने पापा से ली है और उसे उसके पापा से क्या मिला है? डिसीज़ मिली है. ही इज़ अनलकी बिकॉज ही हैड नॉट रिसीव्ड एनी कम्फर्ट फ्रॉम हिज फादर. उसको उसके पापा से कोई कम्फर्ट नहीं मिला है कि फूड, क्लॉथ्स, गुड स्कूल, ये सब नहीं मिला है. बट ही हैड रिसीव्ड अ डेंजरस डिसीज़ फ्रॉम हिज फादर. देयर इज़ वन मोर चाइल्ड हु इज़ सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास. ही इज़ अननोटेड. अननोटेड मीन्स उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है, नॉट विजिबल प्रॉपरली. ठीक है. ही इज़ स्वीट एंड यंग. हिज आइज़ आर फुल ऑफ होप्स एंड ड्रीम्स. उसकी आंखों में बहुत सपने दिख रहे हैं. ही इज़ नॉट इन द क्लास. हिज माइंड इज़ इन द स्क्वेरल ग्राउंड इन द ट्री रूम. उसका ध्यान कहाँ है? स्क्वेरल के ऊपर, एक गिलहरी के ऊपर जो कि ट्री पर दिख रही है. विंडो से क्लास के वो इस चीज़ को देख रहा है. ही इज़ नॉट प्रेजेंट इन द he is physically present in the class but his mind is diverted outside on the tree where a squirrel is there. Okay, so this is the explanation of the first paragraph. The difficult words in this paragraph are I had already explained the difficult words. The literary device in the paragraph are first one is simile in line number 2. Simile is the comparison between two things but the words as or like, जहाँ पर as or like word का यूज़ होता है और comparison होता है को हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं simile. तो यहाँ पर लाइक रूटलेस वीड्स, यहाँ पर चिल्ड्रन को कैसे कंपेयर किया है? रूटलेस वीड्स. तो ये लाइक रूटलेस वीड्स जो है ये क्या है? सिमिली है. नेक्स्ट है मेटाफर. मेटाफर है लाइन नंबर 3 एंड 4 में. लाइन नंबर 3 एंड 4 में देखिए, बॉय इज कंपेयर्ड विथ पेपर. सीमिंग बॉय विथ रैट्स आई. द पेपर सीमिंग बॉय. तो यहाँ पर बॉय को किससे कंपेयर किया है? रैट्स, उसकी आंखों को रैट्स आई से कंपेयर किया है. पेपर सीमिंग बॉय से कंपेयर किया है. तो यहाँ पर भी कंपैरिजन है लेकिन वर्ड एज और लाइक का यूज़ नहीं है, मीन्स इट्स अ मेटाफर. ओके. एंड रेपिटेशन. रेपिटेशन मीन्स कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है. तो फर्स्ट लाइन में फार फार वर्ड रिपीट हो रहा है तो ये रेपिटेशन है. तो यहाँ पर 3 पोएटिक डिवाइस है. दे आर सिमिली, मेटाफर एंड रेपिटेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities,
Bellflower, Tireless Valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for these children, this windows, not this map, their world, where all their future painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rears, caps, and stars of words. Now, in the second paragraph, the poet is describing the classroom. फर्स्ट पैराग्राफ में उसने चिल्ड्रन को डिस्क्राइब किया था, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्लासरूम को डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो यहाँ इस क्लासरूम में जो वॉल्स हैं, वॉल्स आर ऑफ वाइट कलर्ड, ऑफ वाइट कलर जो डल वाइट कलर होता है, ऑफ वाइट कलर की वॉल्स हैं, अनप्लीजेंट और डर्टी वॉल्स हैं. डोनेशंस मीन्स यहाँ पर पिक्चर्स, बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं, पिक्चर्स जो कि डोनेट की गई हैं रिच पीपल, जो बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर डोनेट करी है और वो पिक्चर्स लगी हुई है. पिक्चर गिवन बाय द रिच पीपल. फर्स्ट पिक्चर है शेक्सपियर की पिक है, और सेकंड पिक है क्लाउडलेस डॉन, मीन्स एक सुबह का सीन दिया हुआ है, वो सीनरी लगी हुई है. दिस पिक्चर्स इंक्लूड्स the scenes of cities and beauty and beautiful nature. All these pictures are pasted on the walls. Another picture is of Tireless Valley, which is a beautiful valley located in Australia. एक वैली का पिक्चर है जो ऑस्ट्रेलिया में है. It is full of flowers and greenery all round. ये जो वैली है पूरी ग्रीनरी और फ्लावर्स से बनी हुई है. दिस पिक्चर्स आर आयरोनिकल. ये पिक्चर्स आयरोनिकल है. आयरोनिकल मीन्स अपोजिट है. क्यों है? बिकॉज द कंडीशन ऑफ दिस चिल्ड्रन आर वेरी बैड एंड ऑल दिस पिक शोज रिच लुक. ये सारी पिक्चर्स क्या रिच लुक दिखा रही हैं. होप, ब्यूटी ऑफ द नेचर, प्रॉस्पेरिटी, ऑल दिस पिक्चर्स शोज दिस. देयर इज़ ए पिक्चर ऑफ वर्ल्ड मैप. एक और पिक्चर वहाँ पर लगी हुई है जो कि वर्ल्ड मैप की है. देयर लाइफ डज नॉट लुक लाइक दैट मैप. जो बच्चों की लाइफ है, जो स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं, उनकी लाइफ इस मैप की तरह नहीं है. हियर द पोएट इज टेलिंग दैट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस मैप डज नॉट फॉर्म देयर वर्ल्ड. ये मैप उनका वर्ल्ड नहीं है. फॉर देम देयर वर्ल्ड इज़ वॉट दे सी आउटसाइड फ्रॉम द विंडो ऑफ द क्लासरूम. उनका वर्ल्ड वो है जो वो क्लासरूम की विंडो से बाहर देखते हैं. दैट इज़ स्लम एरिया. द रियलिटी इज़ देयर स्लम एरिया. फ्यूचर पेंट विथ फॉग. उनका जो फ्यूचर है वो पूरा पेंट हो चुका है फॉग से, मीन्स धुंधला है उनका फ्यूचर. देयर इज़ नो ब्राइट फ्यूचर. दे डोंट नो वॉट विल बी देयर फ्यूचर. दे डोंट even fulfill their basic needs. It looks like that their way is bound with cloudy dark sky. ऐसा लग रहा है कि उनके जो रास्ता है वो क्लाउडी डार्क स्काई से बंधा हुआ है. The poet says that these children are located far away from the rears, land and stars of words. यहाँ पे stars of words का मतलब है एजुकेशन, नॉलेज. वो इन सब चीज़ों से दूर हैं. रिवर्स नहीं देख पाते हैं, वो अच्छा लैंड नहीं देख पाते हैं, और ना ही उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है. दे आर टोटली डिप्रीव्ड ऑफ दिस बेसिक नीड्स. वो बेसिक नीड से भी बहुत दूर हैं ये बच्चे. यहाँ पर हमने जो सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि जो वहाँ की वॉल्स है वो सौर क्रीम कलर्ड वॉल्स हैं. पिक्चर ऑफ शेक्सपियर है वहाँ पर. जो शेक्सपियर की एक एलिमेंट्री स्कूल है, और एलिमेंट्री स्कूल में शेक्सपियर की पिक्चर से बहुत आयरोनिक लग रहा है, क्योंकि शेक्सपियर हायर क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं. शेक्सपियर को समझना बहुत इजी नहीं होता है, तो छोटे बच्चों के लिए शेक्सपियर की पिक्चर का कोई यूज़ नहीं है उस रूम में. ब्यूटीफुल सीनरीज़ वहाँ पे लगी हुई है, जबकि वो बच्चे स्लम एरिया में रहते हैं. ठीक है. वर्ल्ड मैप है जो कि उनको क्या शो कर रहा है. वर्ल्ड मैप कि दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और आप लोगों के पास नहीं है, तो उनको भी वो चीज़ें पाने की इच्छा होती है. फिर वो थेफ्ट चालू कर देते हैं, चोरी वगैरह, स्टीलिंग चालू कर देते हैं इस तरह से. नाउ थर्ड पैराग्राफ इज, sorry, before this
I'll explain you the second paragraph, literary device. First is metaphor in line 1, sour cream balls. यहाँ पर बॉल्स को sour cream बताया गया है, तो ये मेटाफर है. लाइन 7 जो है वो भी मेटाफर है. स्केल्ड विथ लीड स्काई, तो यहाँ पर जो लीड स्काई है, क्लाउडी स्काई है, इसको भी यहाँ कंपेयर किया है स्टूडेंट से, चिल्ड्रन से. ठीक है. सेकेंड है एल्यूजन. एल्यूजन मतलब होता है वेल नोन पर्सन को रिफ़र करता है. तो यहाँ पर हमने टायोरियस वैली और शेक्सपियर, दो इम्पॉर्टेंट वेल नोन चीज़ों को, पर्सन को और चीज़ को एक्सप्लेन किया है. और नेक्स्ट है रेपिटेशन. फार फार यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है. ओके, सो this is the explanation of second paragraph with the poetic devices. Now the third paragraph. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that Shelley slay, turn in their crammed holes from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle beads on stones. All of their time and space are foggy slum. So bolt their maps with slum as big as doom. हियर इन द थर्ड पैराग्राफ पोएट डिस्प्लेज हिज एंगर. यहाँ पर वो उनका एंगर बता रहे हैं. हियर द पोएट इज टेलिंग दैट शेक्सपियर इज़ विकेट. शेक्सपियर जो है वो विकेट है, वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है. वाई? बिकॉज दे डोंट नो हु इज़ ही. वो जानते नहीं कि शेक्सपियर कौन है, एंड वॉट इज़ ही फेमस फॉर, और वो क्यों फेमस है. एंड दे डोंट गेट बेसिक एजुकेशन. उनको बेसिक एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो फिर वो शेक्सपियर के बारे में कैसे जानेंगे. सो देर इज़ नो यूज़ ऑफ शेक्सपियर पिक्चर इन देयर क्लासरूम. द वर्ल्ड मैप शोज़ ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स इन द मैप. मैप में सारी ब्यूटीफुल थिंग्स है जो वर्ल्ड मैप उनकी क्लास में लगा हुआ है. दे ऑल्सो वॉन्ट दैम एंड दे आर टेम्पटेड टू स्टील. और उनको भी वो इच्छाएँ होती है और फिर वो चोरी करना स्टार्ट करते हैं, स्टीलिंग चालू करते हैं. दे कॉल्ड देयर हाउसेज as thing by their house as tiny halls. उनके हाउसेस को टाइनी हॉल्स बोल रहे हैं क्योंकि उनके जो हाउस हैं वो बहुत स्मॉल है. एंड दे हैव नो ब्राइट फ्यूचर. और इन बच्चों का कोई ब्राइट फ्यूचर भी नहीं है. देयर फ्यूचर इज़ डार्क, इसलिए उनको होल्स में, टाइनी हॉल्स बताया गया. दिस चिल्ड्रन लिव इन ए डर्टी एरिया, दैट इज स्लम एरिया. एंड दिस एरिया where they are malnourished, they are not getting proper food, and because of malnourished their bones are peeping out. means उनकी जो हड्डियाँ हैं वो उठी हुई दिख रही हैं. क्यों? क्योंकि they are not getting proper food and their skin is coming peeping out, है ना. और उन लोगों ने जो स्पेक्स लगा रखे हैं, स्पेक्टिकल्स लगा रखे हैं, वो स्टील के हैं. उनके जो ग्लास है वो ब्रोकन ग्लास है. ऑल द टाइम प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज़ डार्क. उनका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों डार्क है. हियर द पोएट इज़ सो वरीड अबाउट द इनजस्टिस डन विद द स्लम चिल्ड्रेन. ही इज़ सेइंग नो नीड ऑफ वर्ल्ड मैप टू बी शोन इन द क्लासरूम. इन दैट वर्ल्ड मैप द स्लम चिल्ड्रेन आर टेम्पटिंग टूवर्ड्स स्टीलिंग. सो यहाँ पर जो हमने मेन वर्ड्स पढ़े हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वो है विकेट. विकेट मीन्स होता है ईवल. टेम्पटेड मीन्स होता है परसुएट करना. और स्लेई मीन्स होता है ट्रिकीली. और क्रैम्ड मीन्स होता है कन्फाइंड. और स्लैग हीप मतलब होता है पाइल ऑफ वेस्ट मटेरियल, कचरे का ढेर. ठीक है. मेंडेड मीन्स होता है रिपेयर्ड. और बोल्ट मीन्स होता है टू मेक विथ अ पोएट. ओके. एंड डूम मीन्स होता है डिज़ास्टर. तो ये सारी चीज़ें जो स्लम में डिज़ास्टर हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, वो ये सब चिल्ड्रन की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है. हियर द पोएटिक डिवाइस इन द थर्ड पैराग्राफ इज मेटाफॉर. इन द थर्ड लाइन क्रैम्ड होल्स. देन सिमली इन द सिक्स्थ लाइन. एंड द सिक्स्थ लाइन इज foggy slum. All of their time and space are foggy slum.
like bolted bits of on stones, ये वाली लाइन जो है like bolted bits on stones, ये सिमिली है। फिर नेक्स्ट है एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पर लाइन नंबर 4 में आप देखिए फ्रॉम फॉग, फ साउंड रिपीट हो रही है, तो दैट इज एन एलिट्रेशन। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, दैट इज फोर्थ पैराग्राफ, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक catacombs break open till they break the down and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues ran naked into books the white and green leaves open history theirs whose language is the sun. So in the fourth paragraph, poet wants to end the poem with hopeful notes. He wanted to tell the concerned authorities for betterment of the slum children's life. Okay, here the poet is saying that the governor, inspector, visitors can come and help the children and can change their life, but these people are ignoring these children, this slum area children, and not provide any help to these little kids. Unless these people can do some help, their life would not be changed. जब तक ये लोग इनकी मदद नहीं करेंगे इनकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती. दे शुड मेक द वर्ल्ड मैप इनसाइड द क्लासरूम एज रियलिटी टू देम. जो क्लासरूम में वर्ल्ड मैप है वो इनके लिए रियलिटी बना सकते हैं ये लोग. दे शुड सी ऑल दिस पिक्चर्स इन रियलिटी. ये सारे बच्चों को हक है वो सारी पिक्चर्स रियलिटी में देखने का. इफ़ नो इम्प्रूवमेंट इज़ डन दिस चिल्ड्रन विल बी शट इन द होल्स लाइक कैटाकॉम्स. कैटाकॉम्स मीन्स होता है कब्र. कब्र की तरह वो अपने होल में रहेंगे. दे ऑल विल बी बरीड अलाइव विथ नो इम्प्रूवमेंट. उनका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. ही वॉन्ट्स दैट दिस चिल्ड्रन शुड come out of this poverty, only then there can be some kind of change and improvement in their life. इनको इस poverty line से बाहर निकलना होगा तभी इन लोगों की life में improvement होगा. He wants that these children can enjoy beauty of nature and breathe fresh air and enjoy the sand, and once they get the beauty of nature they will be desire to get education. जब वो beauty of nature को देखेंगे तो उन लोगों को एजुकेशन लेने में भी इंटरेस्ट आएगा. डिज़ायर होगा उनका कि मुझे हमें भी वेल एजुकेटेड होना है. अनलेस दिस टंग्स रन इन बुक्स. टर्न्स रन इन बुक्स का मतलब यहाँ पर है कि जब तक ये लोग बुक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है चिल्ड्रेन. और यहाँ पर क्या बताया गया है, ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड. ग्रीन फील्ड्स में वो इन्जॉय करें मीन्स ब्यूटी के साथ नेचर ऑफ ब्यूटी को देखें. लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, मतलब उनका इंटरेस्ट बुक्स की तरफ बढ़े, है ना. एंड गेट एजुकेशन द वाइट ग्रीन लीव्स ओपन. वाइट ग्रीन लीव्स को यहाँ पर क्या बताया, पेजेस ऑफ द बुक एंड नोटबुक को यहाँ पर वाइट ग्रीन लीव्स से कंपेयर किया है, बताया गया है. हियर द लैंग्वेज ऑफ सन रिप्रेजेंट एजुकेशन. यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ सन क्या है, एजुकेशन एंड नॉलेज. ओनली सच पीपल विल बी एबल टू change the life of this slum area children and create history and make a mark for themselves in history and get progress. अगर इन लोगों को अच्छी एजुकेशन मिली इन बच्चों को तो ये या तो हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे या ऐसा कुछ मार्क क्रिएट करेंगे जिससे इनके जाने के बाद भी लोग इन्हें याद करें, मीन्स एक वेल रिनोन्ड पर्सन बन सकें. ही एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द लास्ट लाइन. अब यहाँ पर आपकी जो पोएटिक डिवाइस है वो मेटाफर है. लाइन नंबर 7 पे ग्रीन एंड वाइट बुक से जो कंपेयर किया है. ओनली देयर इज़ वन पोएटिक डिवाइस हियर इन द लास्ट पैराग्राफ. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम. एंड दिस पोएम फर्स्ट पैराग्राफ द पोएट explain about the 4 children, the physical appearance of the children. In the second paragraph the classroom description is there. In third paragraph the anger of the speaker, anger of the poet is there. And in the fourth paragraph the
poet is ending the poem with a hopeful note. So this is all about this poem, and this poem is very important. Please listen it very carefully, and I hope you understood each and every line of the poem. Thank you.